Now, today's topic will be tangents and normals. What are tangents and normals? Before start tangent and normal, let us discuss what is slope of line. Slope of line will be taken as that is tan theta. You have done in class 11th. And slope of line joining 2 points x1 y1 and x2 y2, that is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. And if lines are parallel, अगर lines आपकी parallel हैं, then their slopes are same. And if lines are perpendicular, अगर lines आपकी perpendicular हैं, then m1 m2 equals to -1. And equation of line passing through a point and having slope that is y minus y1 equals to m into x minus x1. That is the slope of line. These all topics are of class 11th, which we have used here. So slope of line will be tan theta or y2 minus y1 upon x2 minus x1. And if lines are parallel, their slopes are equal. If lines are perpendicular, then m1 m2 equals to -1. And equation of line passing through a point x1 y1 and having slope that is y minus y1 equals to m into x minus x1. Now what will be slope of tangent? Slope of tangent is that is dy by dx, derivative of first derivative, that is called slope of tangent. And slope of normal, that will be -1 upon dy by dx. This is the slope of normal. Now if you have to find slope of tangent to the curve, that is y equals to tan theta at point at theta equals to pi by 4. You have to find its slope. Then you have to find dy by dx or dy by d theta. That will be the slope of tangent to the curve. That is dy by d theta equals to आपका क्या आ गया? That is sec square theta. और थीटा क्या दे रखा है? पाई बाय 4. तो इसमें हम थीटा को क्या पुट कर देंगे? That is पाई बाय 4. तो ये sec square पाई बाय 4. That is ये कितना आ जाएगा? 2. तो ये आपका आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट. मैंने यहाँ थीटा एक्स के लिए यूज किया है. आप चाहें तो यहाँ पर एक्स भी यूज कर सकते हो. y इक्वल्स टू 10x ले लो अगर थीटा से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो. मैंने यहाँ थीटा यूज किया है इन प्लेस ऑफ एक्स. तो अगर dy बाई dx लेना है तो यहाँ पर इसको x ले लो. ठीक है. तो एट एक्स इक्वल टू 5/4 ये आपका स्लोप आ जाएगा. दैट इज 2. The slope of tangent you can find to the curve y equals to 10x at x equal to 5/4. dy by dx find out करेंगे और उसमें x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे. Now here also if tangent are parallel, अगर tangents parallel to x axis है, if tangent is parallel to x axis, अगर ये x axis के parallel हो और perpendicular to y axis हो तो उस केस में हमारा स्लोप क्या होगा? दैट विल बी 0. dy बाई dx इक्वल्स टू हम क्या रखेंगे? 0 के इक्वल रखेंगे. अगर टेंजेंट आपकी क्या है? पैरेलल टू x एक्सिस और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दैट इज गिवन dy बाई dx एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल बिकॉज टेंजेंट एंड नॉर्मल इनके बीच में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर हो गए दोनों. तो m1 m2 इक्वल्स टू क्या लग गया आपका? -1. तो उसके हिसाब से स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया -1 अपॉन dy बाई dx. And I have given one example, that is find the slope of tangent to the curve y equals to 10x at x equals to pi by 4. तो इस केस में आपने y equal to 10x लेना है. dy by dx फाइंड आउट करेंगे और उसमें x की वैल्यू को पुट कर देंगे. तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका आ जाएगा.
Now if tangent is parallel to x axis or perpendicular to y axis, then dy by dx equals to 0. And if tangent is parallel to y axis or perpendicular to x axis, then dy by dx equals to क्या होगा आपका इंफिनिटी और 1/0. इसका जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा आपका इंफिनिटी, बिकॉज ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनेगा इसका 90 डिग्री, और tan 90 क्या होता है इंफिनिटी. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी दैट इज इंफिनिटी व्हेन इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, और पैरेलल टू x एक्सिस होगी तो इसका स्लोप क्या होगा, दैट इज dy by dx इक्वल्स टू 0. मैंने आपके एक्सरसाइज में से दो क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 5 and 8 ऑफ एक्सरसाइज 6.3. In question number 5, you have to find the slope of normal to the curve x equal to a cos cube theta, y equal to a sin cube theta, and theta equals to pi by 4. तो इसमें आप क्या करेंगे, dx by d theta फाइंड आउट करो, that is 3a cos square theta into minus sin theta, and dy by d theta फाइंड आउट करो, that is 3a sin square theta cos theta. Then find dy by dx. dy by dx equals to होगा dy by d theta divided by dx by d theta which is equals to क्या आएगा हमारा 3a sin square theta cos theta upon minus 3a cos square theta sin theta. तो 3a कैंसिल हो गया, एक आपका cos गया, एक sin गया, tan theta बन गया ये. तो यहाँ से dy by dx equals to क्या आएगा, that is minus tan theta, और pi by 4 पर लेंगे तो माइनस tan pi by 4 दैट इज -1. दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. और आपने क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, दैट इज -1 अपॉन dy by dx, दैट इज -1 अपॉन -1 विच इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है हमने, -1 अपॉन dy by dx किया हमने, dy by dx फाइंड आउट किया और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया. सेम एक और क्वेश्चन हमने लिया जिस पर आपने क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स. तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे dy by dx. तो dy by dx इक्वल टू आ गया 2 into x minus 2. दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. जिसका स्लोप है टेंजेंट का. फिर निकालो स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, दैट विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इसमें पुट कर दो 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो ये कितना आ गया, 2 आ गया. नाउ टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन. टेंजेंट किसके पैरेलल है, लाइन के. तो लाइन के पैरेलल है तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे. m1 इक्वल्स टू m2, यानी 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 2 आ गया. 2 से 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 2 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3 है. x की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो यहाँ से y आ जाएगा, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर दैट इज 1. तो पॉइंट विल बी 3,1. ये आपका पॉइंट आ गया. तो यहाँ पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या किया, टेंजेंट पैरेलल थी लाइन के, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट किया, स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट किया 2 पॉइंट फॉर्म से, और दोनों को इक्वल रख दिया, पैरेलल की हमने कंडीशन अप्लाई कर दी. तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8. नाउ वी विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन. Now in this question you have to find the slope of lines having equation of line having slope 0 that are tangents to this curve. जो इस कर्व पर क्या है, टेंजेंट. हमें एक लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जिन लाइंस का स्लोप क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, और वो लाइंस क्या है, दे आर टेंजेंट टू द कर्व. इट मीन्स कि जो ये स्लोप है ये किसका है, टेंजेंट का स्लोप है. तो आपने क्या करना है, यहाँ से dy by dx फाइंड आउट करो, दैट विल बी माइनस इसका -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस 2. चेन रूल अप्लाई कर दिया हमने. ठीक है, अब यहाँ पर dy by dx इसके इक्वल दे रखा है 0 के इक्वल, स्लोप 0 है. जो स्लोप दिया हुआ है उसके इक्वल रखना है इस स्लोप को, dy by dx को. ठीक है, तो हमने 0 के इक्वल यहाँ रखा. ये आपका आ गया -2x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 1. x1 है, x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, y फाइंड आउट करेंगे, 1/1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 कितना हो गया ये 1/2. ठीक है, इसमें हमने पुट किया तो ये आपका आ गया 3 + 1 4 माइनस 2 1/2 आ गया. यानी हमारे पास पॉइंट क्या आ गया 1, 1/2. देन यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. आप इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं
विच इज y माइनस 1/2 इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 1। स्लोप हमारा लाइन का क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ यूज किया, तो ये कितना आ गया आपके पास, दैट इज सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो गया हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी आ जाएगी। तो ऐसे करना है इसको। ठीक है, तो ये कैसे हमने सॉल्व किया, dy/dx हमने फाइंड आउट किया, उसको इक्वल्स टू 0 रखा, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, फिर x की वैल्यू को हमने इसमें पुट किया, y फाइंड आउट किया, तो y हमारा आ गया 1/2, और फिर उसके बाद हमने इस पर 1/2 पॉइंट पर इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई आपके पास। अब लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या करना है, आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, तो हम पहले यहाँ से स्लोप निकालेंगे, 2x/9 प्लस 2y/16 इंटू dy/dx इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से dy/dx हमारा आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इसको हम यहाँ पर माइनस में ले आए, तो ये हो गया -16/9 x/y, ये आ गया। नाउ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर ये x एक्सिस के पैरेलल है देन dy/dx इक्वल्स टू क्या आएगा, 0, दैट इज -16x/9y इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज x इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दी, तो यहाँ से y² इक्वल टू 16 हो गया, पुट x इक्वल टू 0 इन द कर्व, y² 16 आ गया, y इक्वल्स टू क्या आ गया, +/4। So points will be 0 +/4। सेम अगर हमें दे दें टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, देन dy/dx इक्वल्स टू हो जाएगा इंफिनिटी, दैट इज 1/0। तो उस केस में y 0 हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x आ जाएगा +/3। तो ये हमारे थे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टॉपिक, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसके क्वेश्चंस आप अपने आप अटेम्प्ट कर लेना।